Good evening, everyone. Please put your present in the chat box. Okay, two students are from fifth and two from seventh. So let's start with standard fifth and then we will move to the seventh. Okay, standard fifth. Your new lessons to be start today is blow hot, blow cold. There was a woodcutter. Every day in the morning, he used to go to the forest to cut wood. In the evening, he would sell the wood in the city. One day, he went deep into the forest. It was a very cold winter. His fingers were becoming numb. Every now and then, the woodcutter would put down his axe and bring his hand close to his mouth. Then he would blow hard on them to warm them. सी एक वुड कटर था जो हर सुबह जंगल में जाके लकड़ी काटता एंड उनको शहर में जाके शाम को बेच देता। सो एक दिन वो जंगल में गया। तब बहुत ज्यादा ठंड थी। तो हर बार वो लकड़ी काटने जाता, उसके हाथ नम हो जाते और वो अपनी कुल्हाड़ी को नीचे रख देता और हाथ से ब्लो करता। मतलब क्या करता, हीट पास ऑन करता। यस, आप भी ऐसे करते हो या फिर हम हाथ को रब करते हैं एक दूसरे के ऊपर। यस, टू जनरेट सम हीट सो दैट हमें बहुत ज्यादा ठंड ना लगे, राइट। While he was cutting wood, Mian Baliste was watching him from a corner. Mian Baliste saw that the woodcutter kept blowing on his hand. He began to wonder what all that was about, but he could not understand it. He got up thinking that he would go and ask the woodcutter. तो मियान बालिश्ते was watching him और वो सोचता कि ये वुडकटर हर बार क्या कर रहा है, why is blowing on his hand. So he got up and think that he would go and ask the woodcutter. After walking a little, he came back thinking that the woodcutter may not like being asked. तो थोड़ी देर चलने के बाद उसने सोचा कि शायद वुडकटर को मेरा सवाल पसंद ना आए। Then finally Mian Balishte could not help himself. He went hopping to the woodcutter and said, "Hello, brother. If you don't mind, can I ask you something?" Seeing this tiny person, the woodcutter was amazed and amused. But he hid his smile and said, of course, ask what you want. All I want to ask is, why do you blow from your mouth to your hands? Said Mian Balishte. So that Mian was a very little human, you can see. तो उससे रहा नहीं गया और उसने जाके वुडकटर से पूछा कि हर बार क्यों आप अपने हाथों पे एयर ब्लो कर रहे हो, व्हाई यू आर ब्लोइंग फ्रॉम योर माउथ. नाउ सी द वुडकटर रिप्लाइड, it is too cold, my hands are frozen, so I blow on them to warm them up a little. Then when they get cold again, I warm them again by blowing. Mian nodded. Oh, oh, so that's it. And with that, he moved off. But he stayed nearby and kept a close watch on him. तो वुडकटर ने कहा कि जब मेरे हाथ बहुत ज्यादा ठंड पड़ जाते हैं तो मैं क्या करता हूँ, उस पे मुंह से हवा ब्लो कर देता हूँ सो दैट वो फिर से वार्म अप हो जाए एंड आई कैन डू माई वर्क. सो मियान सेड कि हाँ अच्छा ये बात है, और वो फिर वहां से चला गया. फिर भी वो वुड कटर को दूर से देख रहा था. Soon it was afternoon. The woodcutter began to think of lunch. He picked up two stones and made a चूल्हा. अभी दोपहर हो चुकी थी तो वुडकटर ने लंच के बारे में सोचा. उसने दो स्टोन्स लिए और चूल्हा बनाया इस तरह से. He lit a fire and put a small handi filled with potatoes to boil.
उसने आग जला दी और एक छोटी सी हंडी रख दी जिसमें पोटैटोज रखते उबालने के लिए. The wood was damp, so the woodcutter bent down and blew on the fire to help it burn. लकड़ी थोड़ी सी गीली थी, तो वुड कटर नीचे बैठ गया और आग पे फूंक मारने लगा so that it can burn. Baliste was watching him from a distance. अरे, he said to himself, there he goes again, blowing from his mouth. Does fire come out from his mouth? तो मियान फिर से सोचने लगा, अरे फिर से ये ब्लो करने लगा, क्या ये आग उसके मुंह से आती है? The woodcutter was feeling very hungry. He took out a potato from the handi and tried to eat, but the potato was too hot. He again began to blow on it. फू फू. तो अगर कोई चीज बहुत ज्यादा गर्म होती है तो उसे ठंड करने के लिए भी हम उस पे फूंक मारते हैं, राइट? यस. सो वुडकटर वाज डूइंग द सेम थिंग बिकॉज उसको बहुत ज्यादा भूख लगी थी. अरे, said Baliste to himself, he is blowing again. Now what? Is he going to burn the potato? After blowing a few more foo-foos on it, the woodcutter put it in his mouth and began to eat it. तो मियान सोचने लगा कि अरे अभी क्या करने वाला है ये, क्या ये अभी जला देगा पोटैटोज को? थोड़ी देर बाद फू फू करने के बाद वुड कटर ने वो पोटैटोज अपने मुंह में डाले और खा ली. नाउ मियान वॉज वेरी सरप्राइज. ही जस्ट कुड नॉट स्टॉप हिमसेल्फ एंड ऑफ he went hopping to the woodcutter. Hello, brother, he said. If you don't mind, can I ask you a question again? अभी मियान कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था. वो भाग के गया और फिर से वुडकटर से पूछा कि क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? The woodcutter replied, Not at all. Ask whatever you want. Mian Valiste said, This morning you told me that you blew on your hand to warm them up. Now you are blowing on this potato, which is already so hot. Why do you want to make it hotter? So Mian was confused कि पहले तो सुबह उसने बताया कि वो हाथों पे ब्लो कर रहा है so that उसके हाथ वार्म हो जाए. But now already potato पहले से ही गर्म है. तो वो और क्यों उस पे like he was thinking कि वो heat डाल रहा है. Why he is going to give the heat? No, no, my little friend. This potato is too hot. I'm blowing on it to cool it down. तो वुडकटर ने बताया कि no, no, I'm not warming it up. I'm making it cool to खाने के लिए I'm making it cool. When he heard this, Mian Balish's face became white. He began to tremble with fear and started to back away. The woodcutter was a good man. He said, What's wrong, Mian? Are you trembling because of the cold? But Mian Baliste kept going backward. While he was a safe distance away, he said to himself, What kind of creature is this? Surely he must be a ghost or a jinn. Blow hot, blow cold with the same breath. It is not possible. That's right, there are some things which just cannot be, but they are. सो सी मियान बलिश्ते कंफ्यूज हो गया और वो डर गया, वहां से चला गया बिकॉज उसने सोचा कि ये क्रिएचर क्या है, घोस्ट है या या ये कोई घोस्ट है, भूत है या फिर कोई जिन है कि एक ही मुंह से वो दोनों तरह के जो भी हवाएं है ठंड और गर्म वो निकाल सकता है. व्हाट द क्रिएचर ही इज. एंड ये सोच के वो डर गया और वहां से चला गया. Mian Balestes was confused when he saw the woodcutter blowing on his cold hand to make them warm and on the hot potatoes to cool them. Have you warmed your hands in winter by blowing on them when they are cold, and how does it feel? क्या कभी अपने हाथों को फूंक मार के अपने गर्म करने की कोशिश की है ठंड में? Only in winter season. Yes, it feels hot. Okay, yes, good. Not hot actually, it feels warm, right? Blow hard from your mouth onto your hands. How did you find the air from your mouth as compared to the air around? Was it hotter or cooler? अगर आप अपने मुंह से अभी हाथ पे ब्लो करो, जो आपके सराउंडिंग वाली एयर है
उससे हाथ पे ब्लो होने वाली एयर हॉटर है या समवॉट कूलर? यस, इट इज हॉट. Now put your hands at some distance from your mouth and blow again. Does the air from your mouth feel warm and why? अगर आप अपने हाथ को थोड़ी दूर रखते हो तो फिर भी क्या आप ये जो मुंह से आने वाली हवा है वो आपके हाथ को गर्म महसूस होती है? हाथ को दूर रखिए अभी एंड ब्लो इट ऑन. Try to do the same. Okay, let's see. Yes or no. Can you think of any other way in which you use the warmth from your breath? यस, अगर कुछ लग जाता है हमें या फिर आंख में कुछ कर चला जाता है. आई डू द सेम विथ माई 4 year old. क्या आपने कभी ये एक्सपीरियंस किया है? कोई भी हैंकरचीफ या फिर कोई भी क्लॉथ लेके उस पे फूंक मारते रहना और जब वो वार्म हो जाए तो आंख पे लगा देना एंड इट विल गिव यू सूदिंग इफेक्ट. यस, यस, आई डू द सेम. सो यहाँ पे वही एक्टिविटी बताई गई है. सी. मियान ने देखा कि वुड कटर पोटैटोज को हवा ब्लो करके ठंडा करके फिर खा रहा था. अगर वो उसे वैसे ही खा जाता तो क्या होता? जो पॉट था उसमें से निकाल के अगर वो उसको वैसे ही खा जाता. ये सारिया. ही वुड बर्न हिज माउथ. उसका मुंह जल जाता. उसकी जो टंग है दैट कैन बर्न. सो कभी कभी चाय पीते वक्त या कोई भी हॉट ड्रिंक पीते वक्त आपने या फिर कुछ खाते वक्त क्या आपकी टंग बर्न हुई है कभी? हैव यू एवर एक्सपीरियंस्ड? यस. Yes, ma'am. यस. ओके. If you were to cool these three hot things like dal, roti, rice, in which way would you do so? अगर आपको दाल, रोटी, राइस इनको ठंडा करना है, so what you will do? हम हाथ में लेके उस पे फूक मार के फिर खाते हैं या फिर वी विल सिट इन सच एरिया जहाँ पे इजीली एयर अवेलेबल हो सो दैट खाना ठंडा हो जाए, थोड़ा खाने लायक हो जाए, फिर हम उसको खाते हैं, राइट? See, Minnie tried to cool her tea by blowing on it. Which do you think will be hotter, Minnie's tea or air she blew from her mouth? मिनी ने अपनी मुंह से एयर निकाल के ब्लो करके चाय को ठंडा करना चाहा तो क्या गर्म होगा, चाय या फिर मिनी के मुंह से आने वाली एयर? यस, बट ऑब्वियस टी विल बी हॉटर. Sonu was feeling very cold. He kept blowing on to his hands. Now think and write which will be cooler, Sonu's hand or his breath? बोलो. सोनू ठंड में बैठा हुआ है. Yes, hand will be more cooler. Very good. For what other things do you blow air from your mouth? और किस चीज के लिए हम हमारी मुंह से हवा निकालते हैं? फॉर inflaten a balloon. यस, बलून को फुलाने के लिए. देन सीटी बजाने के लिए. मेक अ व्हीसल. आप व्हीसल बना सकते हो पेपर को फोल्ड करके. रैपर ऑफ टॉफी, टॉफी का पेपर, लीफ, बलून, कैप ऑफ अ पेन एंड अदर थिंग. किसमें से ज्यादा लाउड या किसमें से ज्यादा सॉफ्ट आवाज आएगी, दैट यू हैव टू फाइंड आउट. Have you ever seen people playing musical instruments like flute, dholak, bean, guitar, mridang, etc.? Can you recognize their sound with your eyes closed? Yes. आपने देखा है किसी को फ्लूट, मृदंग वगैरह बजाते हुए? जो फ्लूट होती है बांसुरी, इसके लिए वी यूज आवर एयर, राइट? यस, ट्रम्पेट. इनके लिए हमारे मुंह से आने वाली जो एयर है वी यूज दैट.
Ma'am, mouth organ and bean. Yes. Have you seen someone blowing on their spectacle to wipe them clean? How does the air from mouth help in cleaning the spectacle? के आप में से किसी को spectacle है? Anyone uses? तो आपने कभी देखा है या फिर किया है एयर ब्लो करके स्पेक्टेकल को साफ किया है? So how the air can clean that spectacle? What do you think? What will be helping over there? हमारे मुंह से आने वाली हवा एक स्पेक्टेकल को कैसे क्लीन कर सकती है? वाटर वेपर. You can put your finger under your nose and you can feel air. Yes. So air when you breathe out from your nose that you can feel. So 1 मिनट में कितने times आपकी breathing होती है that you can count out by this method. The clock inside you. You have all heard the tick tick of the clock. हमने सबने सुनी है. Have you seen a doctor using a stethoscope to listen our chest? Yes, every time we go to the doctor, doctor वही करता है. What do you think she hears? Where is the sound coming from? Is there a clock inside your chest that keeps tickling away? Yes, no, that are our heartbeat, right? Take a rubber tube as long as the distance from your shoulder to your elbow. आपको एक rubber tube लेना है. At one end tube fix a funnel. एक end पे funnel fix कर देना है और वो उस funnel को आपको अपने chest के left side में जहाँ पे our heart is located हमें place कर देना है. Put the other end of the tube to your ear जैसे कि पिक्चर में दिखाया गया है and we will hear a धक धक sound that is our heartbeat. Okay, got till here? Now snake tells the flow of hair. See, for this take a round paper 10 to 15 centimeter wide एक round paper लेना है आपको. Cut this paper in a spiral shape जैसे बताया गया है यहाँ पे spiral shape में कट देना है. कट कर देना है. टू होल्ड दिस स्नेक टाई थ्रेड ऑन द बोथ साइड. इस स्नेक को पकड़ने के लिए दोनों साइड पे हमें धागा बांध देना है. टाई अ नॉट और अ बटन टू मेक इट हैंग. एक नॉट या फिर बटन लगा देना है वहां पे सो दैट इट विल हैंग. नाउ स्नेक इज रेडी टू मूव. हैंग दिस स्नेक नियर अ हॉट थिंग. For this, you can take a hot tea, water, or a burning candle. Now see from the top in which direction the snake moves. Whenever the air flows upward, it will move in clockwise direction. See, ये जो स्नेक है ये हमें हवा की दिशा बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है. जब हम इस स्नेक को किसी हॉट चीज के पास रखेंगे जैसे कि गरम चाय, गरम पानी, एक बर्निंग कैंडल, तब वो क्या बताएगा? तो अगर आप ऊपर से देखोगे तो ये स्नेक किसी डायरेक्शन में मूव होता हुआ आपको नजर आएगा. जब हवा अपवर्ड फ्लो होती है तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा. एंड व्हेन द एयर फ्लोज डाउनवर्ड द स्नेक विल मूव इन अपोजिट डायरेक्शन लाइक एंटी क्लॉकवाइज. ओके, स्टैंड विद द स्नेक बिलो अ फैन. इस स्नेक के बाजू में आपको फैन के नीचे खड़ा रहना है. लुक इन विच डायरेक्शन इट मूव्स. टेक दिस पेपर स्नेक टू डिफरेंट प्लेसेस एंड ऑब्जर्व इट्स मूवमेंट. तो जब हवा अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन से आ रही है तो ये स्नेक क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है. सो व्हाट वी हैव लर्न फ्रॉम दिस लेसन. व्हाइल प्लेइंग अमित हिट अ वॉल, हिज फोरहेड वाज सोलन. खेलते वक्त अमित वॉल से टकरा गया तो उसका जो फोरहेड है वो सूज गया था. दीदी immediately folded a scarf 4-5 times, blow on it and kept it on Amit's forehead. Why do you think दीदी did this? So दीदी ने क्या किया? एक स्कार्फ लिया, उसको फोल्ड कर दिया और उस पे ब्लो करके अमित के सिर पे लगा दिया. तो क्यों किया उसने ऐसा? व्हाट डू यू थिंक? क्यों किया उसने?
By blowing, that cloth become somewhat warm, and that warmness is giving a soothing effect. यस, आई वाज आस्किंग कि अमित जो है वो खेलते वक्त दीवार पे टकरा गया और उसका जो माथा है उसमें सूज आ गई। तो दीदी ने क्या किया, एक कपड़ा लिया, उसको 4-5 टाइम्स फोल्ड कर दिया, उस पे अपने मुंह से हवा ब्लो की और उसको यस अमित के सर पे रख दिया। क्यों? क्योंकि वो वार्म हो गया था और अ, जो वार्मनेस है वो हमें सूदिंग इफेक्ट देता है जब हमें लगता है। Okay, so we blow to cool hot things as well as to warm them. ठंड में हम हमारे हाथ को गर्म करने के लिए उन पे हवा ब्लो करते हैं और गर्म चाय को पीते वक्त उसको ठंडा करने के लिए हम हवा ब्लो करते हैं। So this was all about the lesson. Fifth standard, have you understood it? Standard Yes, fifth. ma'am. Okay. Any doubts? No, ma'am. Okay, you are not going to leave the class, huh? As you can see, 7 standards who are getting the interest while teaching you. You should also learn whatever I'm teaching to them. This is going to be useful for your 7th. या फिर Okay. जो भी आपका एक्स्ट्रा नॉलेज है ये बढ़ने वाला है, सो नो वन इज गोइंग टू लीव। 7th Yes, ma'am. स्टैंडर्ड हम हमारा 11 लेसन कंटिन्यू करेंगे। Lesson number 11 we are going to continue. Okay, we are about to learn your heart. Yes, heart is the organ which beats continuously to act as a pump for the transfer of blood, which carries other substances with it. हमारी बॉडी में ब्लड का जो भी ट्रांसपोर्ट होता है उसके लिए एक पंप की तौर पर एक्ट करने वाला ऑर्गन है हार्ट, जो ब्लड के साथ साथ दूसरी चीजें जो भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह है बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट उसे भी दूसरे पार्ट तक ले जाता है। इमेजिन अ पंप वर्किंग फॉर years विदाउट स्टॉपिंग, absolutely impossible. Yet our heart works like a pump non-stop. Let us now learn about the heart. क्या आपने कोई ऐसा पंप देखा है जो न रुकते हुए हमेशा चलता रहता है? नहीं, हमारे घर में भी बहुत सारी चीजें रिलेटेड टू द फ्लो हमें चेंज करनी पड़ती है, राइट? यस, बट हार्ट इज a pump which is working like non-stop, it is working. So हम उसके बारे में और ज्यादा पढ़ेंगे। वी ऑल नो दैट, जैसे कि हमने अभी पढ़ा, लेफ्ट साइड में होता है हार्ट। यस, 5th स्टैंडर्ड तक हम यही सीखते हैं। अभी इंटरनली देखिए, द हार्ट इज लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी विथ इट्स लोअर टिप स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट। हम यहाँ तक क्या सीखते आ रहे थे कि हमारा जो हार्ट होता है वो लेफ्ट की तरफ होता है, लेकिन हार्ट चेस्ट कैविटी में होता है और उसका जो लोअर टिप है वो थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ टिल्टेड होता है, एकदम थोड़ा। होल्ड योर फिंगर्स इनवर्ट्स इन योर पाम, दैट मेक्स योर फिस्ट। अगर आप अपने फिंगर्स को एक अपनी मुट्ठी बना देते हो, यस, फिस्ट मुट्ठी, योर हार्ट इज रफली द साइज ऑफ योर फिस्ट। तो आपका जो हार्ट होता है वो आपकी मुट्ठी के बराबर होता है। ओके, गॉट इट? ये ध्यान रखेंगे हमेशा। ये आपको कहीं भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वगैरह पूछा जा सकता है। What will happen if the blood rich in oxygen and the blood rich in carbon dioxide mix with each other? अगर ऑक्सीजन से भरा हुआ एंड कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ ब्लड अगर मिक्स हो जाए तो क्या होगा? सो ये सारी चीजें अवॉइड करने के लिए द हार्ट हैज 4 चैम्बर। नाउ सी द डायग्राम, आई एम एक्सप्लेनिंग, यू सी द डायग्राम। हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं। द टू अपर चैम्बर आर कॉल्ड एट्रिया, दैट इज सिंगुलर एट्रियम। जो ऊपर वाले 2 चैम्बर्स होते हैं उसको एट्रियम कहा जाता है। सी हियर, लेफ्ट एट्रियम एंड राइट एट्रियम। ओके, एंड द लोअर चैम्बर्स आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स। जो लोअर चैम्बर्स है देखिए यहाँ पे, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल, उन्हें वेंट्रिकल कहा जाता है।
The partition between the chambers helps to avoid mixing up the blood rich oxygen with blood rich in oxygen with blood rich in कार्बन डाइऑक्साइड। और और इस चेम्बर में जो पार्टीशन दिखाई दिए पड़ रहे हैं, उन्हीं की वजह से ऑक्सीजन रिच ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड एक दूसरे से मिलने से अवॉइड किए जाते हैं। टू अंडरस्टैंड द फंक्शनिंग ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, स्टार्ट फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द हार्ट एंड फॉलो द एरोस। अगर आपको सर्कुलेटरी सिस्टम ठीक से सीखना है तो वी हैव टू सी फिगर 11.1। जस्ट अ सेकेंड। ओके, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंसेस। सो अगर हमें सर्कुलेटरी सिस्टम सीखना है तो 11.3, हियर इज 11.3, एरो को फॉलो कीजिए। मतलब वेन से पल्मोनरी आर्टरी तक जाता है ब्लड, एंड पल्मोनरी वेन से आर्टरी तक लेफ्ट साइड राइट साइड के आर्टरी से नीचे आता है। दिस इज हाउ द सर्कुलेशन गोज ऑन। ओके, these arrows show the direction of blood flow from the heart to the lung and back heart from where it is pumped to the rest of the body। तो इन एरो से हमने क्या सीखा कि ये जो ब्लड फ्लो होता है वो हार्ट से लंग तक किस तरह होता है, एंड देन अगेन हार्ट से जो जहाँ पर भी बॉडी में रेस्ट ऑफ द पार्ट जो भी बॉडी पार्ट्स है उनकी तरफ कैसे जाता है। ओके, नाउ हार्ट बीट। तो वॉल्स, अभी हमने सीखा स्टेथोस्कोप बनाना, यस, फॉर योर फन। तो अभी सच में जो होता है उसके बारे में भी पढ़ेंगे हम। सी दिस इज हाउ इट लुक्स। ये होता है ईयर पीस और दिस इज चेस्ट पीस। द वॉल्स ऑफ चेम्बर ऑफ द हार्ट आर मेड अप ऑफ मसल्स। हमारे जो हार्ट के चेम्बर के वॉल होते हैं वो मसल्स से बने हुए होते हैं। these muscles contract and relax rhythmically, that's why we can hear the heartbeat, right? This rhythmic contraction followed by its relaxation constitute a heartbeat. Remember that heartbeats continue every moment of our life. If you place your hand on left side of your chest, you can feel your heartbeat. The doctor feels your heartbeat with the help of the instrument called stethoscope. The doctor uses stethoscope as a device to amplify the sound of heart. It consists of a chest piece that carries a sensitive diaphragm, two earpieces, and a tube joining the part. Doctors can get clues about the condition of your हार्ट बाय लिसनिंग थ्रू अ स्टेथोस्कोप। डॉक्टर आपके हार्ट की कंडीशन को स्टेथोस्कोप से जान सकते हैं। लेट अस कंस्ट्रक्ट अ मॉडल ऑफ स्टेथोस्कोप विथ मटेरियल दैट आर अवेलेबल अराउंड अस। तो यहाँ पे भी आपको दिखाया गया है, बट यहाँ पे थोड़ा अलग है। सी क्या बोला गया है, स्मॉल फनेल लेना है एंड एक रबर ट्यूब लेनी है, जैसे कि अपने जो भी लास्ट लेसन हमने पढ़ा अभी उसमें देखा था। देन रबर शीट लेनी है या फिर बलून लेना है जिसको फनेल की माउथ पे आप टाइटली बिठा दोगे रबर बैंड की हेल्प से। पुट ओपन वन एंड ऑफ पुट द ओपन एंड ऑफ द ट्यूब ऑन वन ऑफ योर ईयर्स। जो ओपन एंड है वो कान में रख देना है, एंड देन यू कैन हियर योर हार्ट बीट। एंड जब आप रेस्ट करते हो तब हार्ट बीट कैसे होते हैं, कितने आते हैं एक मिनट में, एंड देन 4-5 मिनट भागने के बाद कितने आते हैं, दैट यू हैव टू सी। सो हार्ट बीट का जो कैलकुलेशन है इन दैट, रेस्टिंग में ज्यादा होंगे या आफ्टर रनिंग ज्यादा होंगे, व्हाट डू यू थिंक? हार्ट बीट काउंट, it will be more while resting or while running? After running, yes, but obvious after running.
The rhythmic beating of various chamber of heart maintains circulation of blood and transport of substances to different part of body. तो ये जो रिदमिक बीटिंग है हार्ट का हमारा एक के बाद एक, इसी की वजह से हमारे हार्ट में के जो चेम्बर्स है उसमें ब्लड सर्कुलेशन रेगुलर रहता है. Bujo wonders if sponges and hydra also have blood. Animals such as sponges and hydra do not possess any circulatory system. हाइड्रा और स्पॉन्जेस जैसे जो एनिमल होते हैं उनमें कोई भी प्रकार की सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होती. वाटर इन विच दे लिव ब्रिंग्स फूड एंड ऑक्सीजन as it enters their body. The water carries away waste material and carbon dioxide as it moves out. तो इनकी सर्कुलेटरी सिस्टम होती ही नहीं, तो जो भी एक्सक्रीशन वगैरह का काम होता है विद द हेल्प ऑफ वाटर. Thus, these animals do not need a circulatory fluid like blood. Let us now learn about the removal of waste other than carbon dioxide. Okay, so circulation is being understood. Circulation is being understood. 7th standard blood circulation, heart समझा है. Yes, tell me. Okay, so now excretory system. Excretion we know after digestion, after the process of digestion, जो भी हमारी बॉडी को नहीं चाहिए, it is get accumulated and then वो वेस्ट मटेरियल की तौर पर हमारी बॉडी से बाहर फेंका जाता है. उस प्रोसेस को आप excretion कहते हैं, right? So we are going to learn about that. Recall how carbon dioxide is removed as waste from the body through the lungs during exhalation. हमारे इनहेलेशन एंड एक्सलेशन को के प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं, राइट? तो इस रेस्पिरेशन के प्रोसेस में एक्सलेशन होते वक्त कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से निकल जाता है एज अ वेस्ट मटेरियल. Also recall that the undigested food is removed during digestion. Digestion में जो digestion का process होता है वहां पे undigested and unwanted food is removed from the body which is called as waste. Let us now find out how the other waste material are removed from the body. बाकी के waste material body से कैसे remove होते हैं? See, when our cells perform their functions, certain waste products are released. जब हमारे सेल्स है जो पेशी है हमारे बॉडी के अंदर वो अपने खुद के फंक्शंस परफॉर्म करते हैं तो उसमें से भी कुछ वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज होते हैं. दीज आर टॉक्सिक. ये सारे जो भी वेस्ट मटेरियल है सेल से रिलीज होने वाले वो बहुत ज्यादा टॉक्सिक होते हैं एंड इनको बॉडी से निकालना जरूरी है. The process of removal of wastes produced in the cell of living organism is called excretion. We all know. And the parts which जो भी इस excretion के processes में जो भी body parts involve होते हैं उनको excretory system कहा जाता है. उनसे excretory system बनता है. So the waste which is present in the blood has to be removed from body. How can this be done? जो हमारे blood में waste material आते हैं उनको बॉडी से निकालना जरूरी है. सो इसके लिए एक मैकेनिज्म जरूरी होता है जो ब्लड को फिल्टर करता है एंड वो कौन करता है? ब्लड कैपिलरीज जो भी किडनीज में प्रेजेंट होती है. व्हेन ब्लड रीचेस द टू किडनीज इट कंटेन्स बोथ यूजफुल एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस. हमारी बॉडी में दो किडनीज होती है. जब ब्लड इन किडनीज की तरफ जाता है तब उस ब्लड में यूजफुल एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस दोनों होते हैं. यूजफुल सब्सटेंसेस फिर से ब्लड में एब्जॉर्ब किए जाते हैं एंड वेस्ट वाटर में डिसॉल्व होके यूरिन से बाहर निकाले जाते हैं. फ्रॉम किडनीज यूरिन गोज इनटू यूरिनरी ब्लैडर. किडनी से हमारी जो यूरिन है यूरिनरी ब्लैडर में जाती है थ्रू ट्यूब लाइक यूरेटर्स. सी दिस इज हाउ इट वर्क्स. ये हमारी किडनी है. इसमें जो यूरिन होती है उसमें वेस्ट मटेरियल होते हैं. यूरेटर एक ट्यूब की जैसे होती है जिसमें यूरिनरी ब्लैडर जो किडनी में जो हमारी यूरिन जमा हुई है ये यूरेटर उसको यूरिनरी ब्लैडर में लाता है.
It is stored in the bladder and is passed out through the urinary opening at the end of muscular tube called urethra. तो इस यूरिनरी ब्लैडर में वो यूरिन स्टोर हो जाती है, और जब हम उसको, हमारी बॉडी उसको ज्यादा स्टोर नहीं कर पाती, तब हम वॉशरूम जाते हैं, यस टॉयलेट जाते हैं, और ये इस यूरिनरी ओपनिंग से वो बाहर आ जाती है. द किडनीज, यूरेटर, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा फॉर्म एक्सक्रीटरी सिस्टम. तो हमारी एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनी, यूरेटर, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, ये 4 ऑर्गन्स होते हैं. An adult human being normally passes about 1 to 1.8 liter of urine in 24 hours. एक अडल्ट ह्यूमन को 24 आवर्स में 1 to 1.8 लीटर ऑफ यूरिन पास करना है. यूरिन में 95% ऑफ पानी ही होता है, 2.5% यूरिया होता है, एंड 2.5% अदर वेस्टेज होते हैं. We have all experienced that we sweat hot on a summer day, right? पसीना आता है ना बहुत ज्यादा गर्मियों के दिनों में. Yes. Why does this happen? Any idea? Do you have any idea regarding this? क्यों होता है ये? गर्मियों में बहुत ज्यादा पसीना क्यों आता है? दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ मैकेनिज्म जहाँ पे बॉडी अपना वेस्ट मटेरियल बाहर निकाल रही है. सी, the sweat contains water and salts. Pujo has seen that sometimes in summer white patches are formed on our clothes. लाइक अंडर आर्म्स के जो एरिया होते हैं, यूनिफॉर्म में भी आपके होते होंगे, क्योंकि यूनिफॉर्म हम बहुत देर तक पहन के रखते हैं. सो ये व्हाइट मार्क्स क्यों आते हैं? बिकॉज ऑफ द सॉल्ट प्रेजेंट इन द स्वेट. हमारा जो पसीना होता है उसमें सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए. सो द स्वेट सर्व एनी अदर फंक्शन. सो वाटर केप्ट इन एन अर्दन पॉट इज कूलर. हमें पता है कि मटके में जो पानी रहते हैं वो ठंडा होता है. दिस इज बिकॉज द वाटर इवापोरेट फ्रॉम द पोर्स ऑफ द पॉट विच कॉजेस कूलिंग. क्यों होता है ये ऐसा? क्योंकि पॉट में जो पोर होते हैं उनकी वजह से इवापोरेशन होता है एंड कूलिंग होता है. द वे इन विच वेस्ट केमिकल आर रिमूव फ्रॉम अवर बॉडी ऑफ एनिमल डिपेंड ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर. एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, फिशेस जैसे, वो सेल में से अमोनिया निकालते हैं और वो डायरेक्टली पानी में डिसॉल्व हो जाता है. बर्ड्स, लिजार्ड, स्नेक जैसे लैंड एनिमल सेमी सॉलिड सिक्रेट करते हैं एंड व्हाइट कलर्ड कंपाउंड यूरिक उनकी बॉडी से निकालते हैं. मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है ह्यूमंस में यूरिया, जो कि बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है और उसको बॉडी से निकालना बहुत जरूरी है. Sometimes a person's kidney may stop working due to infection or injury. आपने कभी सुना है कि कोई डायलिसिस के लिए जाता है? एल्डरली पर्सन में बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम होता है कि उनको डायलिसिस के लिए जाना पड़ता है. यस, ओके. तो ये क्यों होता है? कभी कभी क्या होता है, किसी भी पर्सन के किडनीज इन्फेक्शन की वजह से या फिर इंजुरी की वजह से काम करना छोड़ देते हैं. इस वजह से किडनी फेल हो जाती है एंड जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो खून में जमा होने लगते हैं, एंड जब तक उनका ब्लड फिल्टर नहीं होता वो जी नहीं सकते. तो आर्टिफिशियल किडनी डायलिसिस के प्रोसेस में आर्टिफिशियल किडनी की हेल्प से इनका ब्लड प्यूरिफाई होता रहता है सो दैट दे कैन लिव. सिमिलरली व्हेन वी स्वेट इट हेल्प्स टू कूल अवर बॉडी. तो उसी तरह जब पसीना आता है हमारी बॉडी को कूल रखने में हमारे मदद होती है. ओके. तो दिस वाज ऑल अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स. एनिमल्स में जो भी ट्रांसपोर्टेशन हमने पढ़ा समझ में आया है सबको? शैल वी मूव टू द प्लांट्स देन? 7th standard, is it okay? Any doubt still here? Do you have any doubt? Yes. Yes, okay. Now transport or substances in plants. In chapter 1, you learn that plants take water and mineral nutrient from the soil.
किसकी हेल्प से? रूट्स, रूट्स की हेल्प से लेते हैं और लीव्स एंड अदर पार्ट को ट्रांसफर कर देते हैं। लीव्स प्रिपेयर फूड एंड फूड प्रिपेयर करने के लिए फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड का यूज होता है। And food is the source of energy and every cell of an organism gets energy by breakdown of glucose. जो भी फूड हमको मिलता है प्लांट्स में भी ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के बाद ही एनर्जी मिलती है। द सेल्स यूज दिस एनर्जी टू कैरी आउट वाइटल एक्टिविटीज ऑफ लाइफ। तो हमारे जो भी जीवनावश्यक क्रियाएं हैं, जैविक क्रियाएं हैं, उनको चालू रखने के लिए सेल्स ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से मिलने वाली एनर्जी एटीपी के फॉर्म में स्टोर करके उनको यूज करती है। Therefore, food must be made available to every cell of an organism. Have you ever wondered how water and nutrient absorbed by the root are transported to the leaf? किस तरह से ये सारे मिनरल्स, वाटर जो भी मिट्टी में होते हैं, वो किस तरह से पेड़ के लीव्स तक पहुंचते हैं, वो हम सीखेंगे। So plants absorb water and mineral by root and roots have root hair. Yes, roots में root hair होते हैं, ये हमें पता है। Root hair increase the surface area of root for the absorption of water. रूट एयर की वजह से क्या होता है, वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए जो सरफेस एरिया है रूट्स का वो बढ़ जाता है। एंड वाटर एंड मिनरल इजीली जो भी पानी में डिसॉल्व हुए होते हैं, रूट हेयर उनके कांटेक्ट में आ जाते हैं एंड उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सी तो बोझों को लगता है कि प्लांट्स में भी कुछ पाइप्स वगैरह होंगे, जैसे कि हमारे घर में रहते हैं और उसमें से हमें पानी आता है। तो बोझो थिंक्स कि शायद प्लांट्स को भी कुछ पाइप्स वगैरह होंगे। सो बोझो इज राइट, नॉट एक्चुअली द पाइप like vessels are there in the plant which perform the function of transfer of water and nutrient from the soil. The vessels are made up of special cells. Okay, sorry for the inconveniences. यस, तो इस प्लांट्स में क्या होते हैं, वेसल्स होते हैं जो पाइप्स की तरह काम करते हैं एंड दे आर एक्चुअली ट्रांसपोर्टिंग द मटेरियल। सो इन वेसल्स स्पेशल सेल्स से बने हुए होते हैं जिससे वैस्कुलर टिश्यू तैयार होते हैं। टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल दैट परफॉर्म specialized function in an organism. The vascular tissue for the transport of water and nutrient in plant is called xylem. तो वाटर एंड न्यूट्रिएंट प्लांट्स में दो टाइप के टिश्यू होते हैं, आपको पता होगा, जाइलम एंड फ्लोएम। यस, पता है इनके बारे में। तो जो भी वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स ले जाते हैं उनको जाइलम कहा जाता है। No, you don't have this idea. Okay. Plants contain two type of tissue, xylem and phloem. Okay. तो वाटर एंड न्यूट्रिएंट ले जाने वाले होते हैं, उनको जाइलम कहा जाता है। Xylem forms a continuous network of channel that connect root to the leaves to the stem and branches and thus transports water to the entire plant.
जाइलम का एक कंटिन्यूअस नेटवर्क होता है जो रूट एंड लीव्स को स्टेम के साथ कनेक्ट करते हैं एंड इस तरह से पूरे पेड़ को पानी दिया जाता है. वाटर एंड विद water with nutrients, right? Now phloem. You know that leaves synthesize food. फूड कहाँ पे तैयार होता है? प्लांट के लीव्स में तैयार होता है. तो बहुत ज्यादा सब सारे जो पार्ट्स है प्लांट के वहां तक कैसे जाएगा? तो उनके लिए दूसरे वेस्कुलर टिश्यू काम करते हैं जिनको फ्लोएम कहा जाता है. तो फूड पार्टिकल को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं फ्लोएम एंड वाटर एंड न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं जाइलम. और इन जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू को मिलाकर प्लांट का ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनता है. गॉट इट? समझा है यहां तक? 7th स्टैंडर्ड. गॉट क्लियर? टेल मी. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टॉप ओवर हियर. ओके, आज के लिए हम यहीं पे रुकने वाले हैं. नेक्स्ट टाइम we will be continuing with the lesson. Okay, so now you all can leave the class. Bye bye. Bye, ma'am. Bye. Welcome. Bye.